Good evening, everyone. Yesterday we had started with biomolecules, where first we had discussed the importance of biomolecules for the sustenance of our life, and then we had started with the discussion of carbohydrates. In carbohydrates, we have seen classification. After the classification, we started with the structure of glucose. We saw the preparation of glucose and structure of glucose, for which we had discussed the evidences on the basis of which structure of glucose was given. And finally, we arrived at a structure of glucose which was given by Fischer, जिसे हम ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कहते हैं. कल जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, दैट इज एक्चुअली द फिशर स्ट्रक्चर और ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ glucose. Now today we are going to see cyclic structure of glucose. Cyclic structure of glucose. So even for the cyclic structure of glucose, we need to discuss the evidences first. On what evidences, on the basis of what facts the cyclic structure of glucose was proposed, पहले वो evidences को discuss करेंगे. ठीक है. इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि although yesterday we had discussed glucose has an aldehyde group present, but despite of having aldehyde group in it, glucose do not give Skiff test and it do not react with sodium hydrogen sulfide to form addition product. aldehyde ग्रुप होने के बावजूद ग्लूकोज ना ही स्किफ टेस्ट देता है और ना ही ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है. पहली एविडेंस फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर. सेकेंड एविडेंस ये है that the penta-acetate derivative of glucose, that is glucose penta-acetate do not react with hydroxylamine to form oxime derivative. ग्लूकोज रिएक्ट करता है, याद कीजिए ये एविडेंस कल हमने पढ़ा था. ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिलामाइन एंड फॉर्म ऑक्साइम डेरिवेटिव, जिसके बेसिस पे हमने कहा था कि कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज. बट the penta-acetate of glucose penta-acetate, that do not react with hydroxylamine and it do not form oxime derivative. इसका मतलब ये हुआ that the aldehyde group in the glucose is not free. What does it mean? Aldehyde group in glucose is not free. Absent नहीं बोलेंगे क्योंकि कल ही तो हमने पढ़ा है aldehyde group is present in glucose. लेकिन आज हम देख रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो इसका एक एविडेंस ये है कि पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज इज नॉट रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म ऑक्साइम डेरिवेटिव, व्हिच सिंपली मींस दैट द एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज इज नॉट फ्री. ठीक है, दो एविडेंस हो गए. तीसरा एविडेंस ये है दैट ग्लूकोज वाज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म. दो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्टेंस मिला ग्लूकोज का, जिसको नाम दिया गया अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज. वेयर अल्फा ग्लूकोज हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अराउंड 419 केल्विन, 419 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ concentrated solution of glucose at around 303 Kelvin. When the concentrated solution of glucose is crystallized at 303 Kelvin, we obtain alpha glucose. Crystallization एक टेक्निक है, प्रोसेस है, जिसमें सॉल्यूशन में से हम क्रिस्टल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो when crystallization is carried out at 303 Kelvin, 303 Kelvin पे
दिस सेपरेट्स आउट, अल्फा ग्लूकोज सेपरेट्स आउट, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन. Whereas beta form of glucose, it has a melting point 423 Kelvin. Melting point क्या है इसका? 423, that is 423 Kelvin, and it is obtained by crystallization of hot saturated solution of glucose. Hot saturated solution of glucose on crystallization gives beta glucose. क्रिस्टलाइजेशन का टेम्परेचर इसका अराउंड 371 केल्विन के आसपास होता है, 371 केल्विन. ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज दिस अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म. अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. सो दैट इज व्हाई द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाज प्रपोज्ड. लेट अस अंडरस्टैंड इट इन डिटेल नाउ. मैं इसके एविडेंसेस यहाँ पे नोट भी करते जा रहा हूं. ग्लूकोज डू नॉट गिव Skiff's test and it do not give addition product with sodium hydrogen sulfide. ठीक है, despite of having aldehyde group, glucose do not give Skiff test and it do not give addition product with sodium hydrogen sulfide. aldehyde group present है, उसके बावजूद ये नहीं दे रहा है. यस, आर, हाँ. सेकेंड, पेंटा एसीटेट of glucose do not react with hydroxylamine which shows that aldehyde group, CHO group, is not free in glucose. Pentacetate of glucose do not react with hydroxylamine. जिस पेंटाएसिटेट का मतलब हुआ, कल ये हमने पढ़ा था रिएक्शन कि ग्लूकोज का अगर हम एसाइलेशन करें तो वो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनाता है, जिससे पता चलता है कि उसमें 5 OH ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम्स पे प्रेजेंट है. तो ये जो पेंटाएसिटेट बनता है, ये पेंटाएसिटेट हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्ट नहीं करता. इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज में है तो सही, पर वो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, कहीं बिजी है वो, है ना. तीसरा देखिए, आई थिंक रिकॉर्डिंग इज ऑन. ग्लूकोज was found to exist in 2 different crystalline form. That is alpha and beta form. दो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखने को मिला ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, है ना. इसमें ये याद रखना है, अल्फा ग्लूकोज इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 419 केल्विन,
is obtained on crystallization of concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, whereas beta form और बीटा ग्लूकोज लिखता हूं सीधा, बीटा ग्लूकोज is obtained, बीटा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बीटा ग्लूकोज इज 423 Kelvin. So beta glucose melting point 423 Kelvin is obtained on crystallization from hot saturated solution of glucose at 371 Kelvin. Just verify the temperature. Sure, just verify the temperature. The melting point temperature and this crystallization point wala temperature. Right? So glucose was found to exist in two different crystalline form, that is alpha and beta form. Alpha glucose जिसकी melting point 419 Kelvin है, ये कैसे मिलता है हमें? By crystallization of concentrated solution of glucose at 303 Kelvin. जबकि बीटा ग्लूकोज जो है उसकी melting point 423 Kelvin मिली and it is obtained on crystallization from hot saturated solution of glucose at 371 Kelvin. Now, further, chemists explained the existence of alpha and beta glucose as that first of all, the open chain structure cannot explain existence of these two crystalline form. ग्लूकोज का जो कल हमने फिशर स्ट्रक्चर पढ़ा था, ओपन स्ट्रक्चर पढ़ा था, ओपन चेन, वो कहीं भी अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया? एक्सप्लेनेशन ये दिया गया दैट OH group from one of the carbon atom is added to the aldehyde group. So when OH is added to aldehyde group, a cyclic hemiacetal is formed. क्या बनता है? साइक्लिक हेमीएसिटल. 2 मिनट जरा मेरी तरफ देखो, याद कीजिए अल्डिहाइड और कीटोन्स में आपने एक रिएक्शन पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आपने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विथ एल्कोहल, राइट? तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने पे पहले क्या बनाते हैं? हेमीएसिटल, और उसके बाद क्या बनाते हैं? एसिटल, राइट? मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, यहाँ ग्लूकोज में अल्कोहलिक ग्रुप भी है, इट इज हैविंग OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप इज देयर and it is also having aldehyde group. So what chemists explain that OH from one of the carbon is added to aldehyde group at the first carbon. So what happens due to this? It forms a cyclic hemiacetal, and this cyclic hemiacetal can exist in two different forms, that is alpha and beta form. So let us understand first the formation of this cyclic hemiacetal.
इनका ये कहना था that the OH group present at the fifth carbon, ये इसका फर्स्ट कार्बन है, this is second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth, and this one is sixth. So the OH from fifth carbon is added to aldehyde group at the first carbon. So this further results into the formation of cyclic hemiacetal. I will be showing two cyclic hemiacetal formed here. First I am showing the alpha form of the cyclic hemiacetal. तो अल्फा फॉर्म में ऐसा दिखा रहा हूं. लाइन और लेंथ बिगड़ गया. आप घबराना मत, इन स्ट्रक्चर्स को देख के इसको ड्रॉ करना बहुत आसान होता है. मैं समझाता हूं कैसे ड्रॉ करना. देखिए ये बना cyclic hemiacetal. OH from here is added to the carbon of aldehyde group. So this will result into the formation of the cyclic hemiacetal. हाँ, ये क्या बना cyclic hemiacetal. इसको हम कहेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. क्या कहेंगे? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. अल्फा अल्फा का मतलब ये हुआ कि दिस इज द अल्फा फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज. डी स्टैंड्स फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, प्लस साइन इज फॉर द डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड ग्लूकोज इज ग्लूकोज इटसेल्फ. अब बीटा फॉर्म में क्या डिफरेंस है? बीटा फॉर्म ध्यान से देखना. बीटा फॉर्म में डिफरेंस बस ये छोटा सा है, द कॉन्फ़िगरेशन एट द फर्स्ट कार्बन एटम इज डिफरेंट. What you can see that the configuration at first carbon atom is different. यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम पे आप देखो OH is written towards right, नहीं, और यहाँ पे OH is written towards left. अब ये अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा आर नथिंग, दे आर द आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज. नहीं हर्षित, alpha and beta are nothing, they are the isomers of glucose, and these are such isomers which differs only in the configuration around first carbon atom. इन दो आइसोमर में क्या डिफरेंस है? इन दो आइसोमर में एक ही डिफरेंस है, द पोजीशन ऑफ OH एट फर्स्ट कार्बन. तो मैं इन दोनों को ऐसे यहां से थोड़ा शो करते हुए लिख रहा हूं. Alpha and beta forms, या alpha and beta glucose differs in configuration around first carbon, that is C1. फर्स्ट कार्बन C1 कार्बन पे जो है कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है. दीज आर कॉल्ड एनोमर्स. इनको क्या कहा जाता है? एनोमर्स. इसका मतलब एनोमर्स क्या है? एनोमर्स आर दोज आइसोमर्स
which differs only in configuration at the first carbon atom. ऐसे आइसोमर जिनमें सिर्फ फर्स्ट कार्बन एटम पे कन्फिगरेशन मीन्स पोजीशन ऑफ एटम डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं? एनोमर्स कहते हैं. और ये जो कार्बन बना C1 कार्बन, इसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं. दैट इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन. आ रहा है समझ में? चलिए, अब इसके आगे भी थोड़ा सा पार्ट है जो मैं चाहता हूं कि मैं अभी इसी पे कंप्लीट कर दूं, लेकिन एक बार फिर से आपको जरा सा कनेक्ट कर देता हूं. व्हाट वी हैव रेड yesterday, we have read about the structure of glucose. The structure that we discussed yesterday is Fischer structure, or also known as open chain structure of glucose. But chemists later found that there are other properties of the glucose which are not explained by open chain structure of glucose. कौन से properties? जैसे glucose do not give Skiff test and it do not form addition product with sodium hydrogen sulfide. The pentacetate of glucose do not react with hydroxylamine. इसका मतलब the aldehyde group in glucose is not free, it is not available. That is why hydroxylamine is not reacting. Glucose, it was found to exist in two different forms, alpha and beta. The melting point of alpha form and beta form are given, and how these alpha and beta form are isolated from the glucose solution, that is also given. So the existence of this alpha and beta form can never be explained upon considering open chain structure of glucose only. अगर हम ग्लूकोज का सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर कंसिडर करके चले तो अल्फा और बीटा फॉर्म की एग्जिस्टेंस को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. तो केमिस्ट ने पहले ये सजेस्ट किया और फिर एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि ग्लूकोज में OH ग्रुप एट द फिफ्थ कार्बन एटम is added to the aldehyde carbon at first position, and this way it results into formation of cyclic hemiacetal. Now the cyclic hemiacetal alpha and beta form are in front of you, and you can see the difference how alpha and beta form are explainable. In alpha form you can see the OH at first carbon is written towards right, whereas in beta form OH at first carbon is written towards left. So this is now explaining existence of alpha and beta form, and also we have given it the name as anomers. The alpha and beta form here, which differs in configuration around first carbon only, क्या कहा जाता है इनको? anomers. और C1 कार्बन को हम कहते हैं anomeric कार्बन. अब देखो यहाँ पे जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना, ये साइक्लिक रिंग जो है ये कितने मेंबर्ड हो गए? 1 2 3 4 5. 5 तो कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, राइट? 5 कार्बन एक ऑक्सीजन. तो एक्चुअली दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग. कैन आई ड्रॉ इट हियर? दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग and the structure of glucose, cyclic structure of glucose, it has resemblance with 6 membered heterocyclic ring pyrene. ये जो कंपाउंड है ना, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. इस कंपाउंड को कहते हैं पायरेन. तो द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हैज रिसेम्बलेंस विथ पायरेन, एंड द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज रिटन लाइक दिस. देखिए, ये मैंने 6 मेंबर्ड रिंग बना दिया. अब आपको क्या करना है कि जहां पे OH राइट की तरफ दिख रहा है ना, वहां OH को आप डाउनवर्ड लिखोगे, और जहां OH आपको लेफ्ट की तरफ दिख रहा है उसको अपवर्ड लिखोगे. तो फर्स्ट कार्बन पे यहां से हम स्टार्ट करें, ये फर्स्ट कार्बन है तो ये हो जाएगा HOH. सेकेंड कार्बन पे HOH. थर्ड कार्बन पे देखो OH लेफ्ट की तरफ है तो ऊपर लिख दिया. फोर्थ पे अगेन HOH, और उसके बाद है CH2OH एंड H. आपका यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ कार्बन, एंड दिस वन इज सिक्स्थ कार्बन. एंड
This particular cyclic structure of glucose is named as alpha D plus glucopyranose. क्या कहते हैं इसको? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज. क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभी दैट व्हाई इट इज नोन एज ग्लूकोपाइरेनोज. ग्लूकोपाइरेनोज क्यों कहा? तो रीजन बिहाइंड कॉलिंग इट ग्लूकोपाइरेनोज इज इट हैज रिसेम्बलेंस विथ पाइरेन. इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का पाइरेन के साथ रिसेम्बलेंस है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? ग्लूकोपाइरेनोज. सेम वे अब मैं बीटा फॉर्म का लिख रहा हूं. देखो शौर्य, बीटा फॉर्म में OH लेफ्ट की तरफ है ना, फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट की तरफ है ना, तो OH इज रिटन ऑन टॉप, H नीचे, फिर H OH OH H H OH इसको क्या कहेंगे? बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज. बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज है ना. इजी सिंपल. आपको स्ट्रक्चर देख के लग रहा होगा कि ये क्या ड्रॉ किया है, ये कैसे प्रिपेयर्ड होगा, लेकिन यकीन मानो इसमें आपको कुछ नहीं करना है. एक बार अगर आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज प्रिपेयर कर लिया तो साइक्लिक भी बन जाएगा. साइक्लिक में आपको बस 6 मेंबर्ड रिंग बनाना है और आपको यहां से स्टार्ट करना है फर्स्ट पोजीशन पे. अगर OH राइट की तरफ है तो डाउनवर्ड लिखना है और लेफ्ट में है तो अपवर्ड लिखना है. दैट्स ओके. So this completes cyclic structure of glucose. Next we will move on to fructose. नहीं, पहले ये लिखना है फिर बोलो. अगर आपको बोला जाए ना कि शो द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटाल ऑफ ग्लूकोज, तो आपको ये बताना होगा. और आपको बोला जाए कि ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो आपको ये दोनों. ये भी साइक्लिक है लेकिन यहाँ पे हेमी एसिटाल का फॉर्मेशन दिखा रहा है. दिस इज शोइंग फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटाल, है ना. और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे पाइरेनोज स्ट्रक्चर ये. ओके चलिए, नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज. फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. अभी थ्योरेटिकल पार्ट ना यहाँ लिखूंगा कम मैं, स्ट्रक्चर्स मेनली आपको बताऊंगा. तो कल जिस तरह से मैंने ग्लूकोज के लिए आपको एविडेंसेस बताया था, बेस्ड ऑन सिमिलर काइंड ऑफ एविडेंसेस इट वाज प्रपोज्ड दैट फ्रक्टोज आल्सो हैज 6 कार्बन एटम्स इन द स्ट्रेट चेन. फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है. एंड इट वाज फाउंड दैट इट कंटेन्स a ketonic functional group at second carbon atom. ये देखा गया कि फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन एटम पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? केटोनिक. सो बेस्ड ऑन दैट द फिशर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इज लाइक दिस. It is very easy to understand. This one is first carbon atom, second, third, fourth, fifth and sixth. ठीक है, 6 कार्बन एटम है. This is open chain structure of fructose, where you can see that the ketonic functional group is there at the second carbon atom. ketone functional group कौन से कार्बन एटम पे है? सेकंड. तो यहाँ पे जो हेमी एसिटाल का फॉर्मेशन होगा, वो हेमी एसिटाल का फॉर्मेशन कैसे होगा? बाय एडिशन ऑफ OH टू द कार्बोनिल कार्बन एट सेकंड पोजीशन.
ठीक है, तो that will be forming again a cyclic कीटाल, कीटोन से बन रहा था, साइक्लिक कीटाल बोल देंगे इसको, राइट। सो आई एम drawing the structure of that cyclic ketal over here. This is the cyclic hemiacetal और cyclic ketal, ठीक है। ये कौन सा हुआ, अल्फा फ्रुक्टोज हुआ ना। It was found that fructose is having D configuration and it is levorotatory. फ्रक्टोज का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, D, जस्ट लाइक ग्लूकोज, एंड इट इज, यहां से भी पता चल रहा है, देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड में भी OH राइट की तरफ था ना, तो दिस इज आल्सो हैविंग D कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज लीवोरोटेटरी, तो इसको हम कहेंगे अल्फा D माइनस फ्रक्टोज। और अगर यहाँ पे मैं पोजीशन फर्स्ट कार्बन एटम पे चेंज कर दूं, CH2OH को राइट में लिख दूं और OH को लेफ्ट में लिख दूं और बाकी का एज इट इज रखूं, तो क्या होगा, बोलो बोलो, दिस वन इज बीटा D माइनस फ्रक्टोज। क्या होगा ये, बीटा D माइनस फ्रक्टोज। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, राइट। अब यहाँ पे जो रिंग फॉर्म हो रहा है, सनी ध्यान से देखिएगा, जो रिंग फॉर्म हो रहा है, दिस इज अ 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, जबकि ग्लूकोज के केस में जो रिंग दिख रहा था वो कैसा था, 6 मेंबर्ड। रिकॉर्डिंग ऑन है। ग्लूकोज के केस में इट वाज 6 मेंबर्ड रिंग रिसेंबलिंग टू पायरेन। यहां पे ये जो रिंग है, दैट रिंग इज एक्चुअली रिसेंबलिंग टू a 5-membered heterocyclic compound that is furan। कौन सा कंपाउंड है ये, फ्यूरान। सो यहां पे रिंग किसको रिसेंबल कर रहा है, फ्यूरान को। इसीलिए यहां जब हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का कुछ ऐसा होगा। देख लीजिए क्या होगा, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अल्फा D माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज। आ रहा है ना समझ में, जैसे वहां पायरेनोज बोला था, यहां क्या कह रहे हैं, फ्यूरानोज। एक मिनट, अरे ये अल्फा नहीं, ये बीटा हो गया, सॉरी, दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज बीटा। OH ऊपर लिख दिया है ना मैंने।
ये क्या होगा सनी? This is alpha D minus fructofuranose, है ना? सिंपल, बस फ्रक्टोज में इतना ही है। इसके अलावा थ्योरेटिकली और क्या क्या याद रखोगे? दैट फ्रक्टोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6 only. This fructose is obtained along with glucose on hydrolysis of sucrose. सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज के साथ हमें फ्रक्टोज भी मिलता है। Based on the evidences, fructose has this as open chain structure in which you can see ketone group is at second carbon. This also is found in two different form, alpha and beta, which can be explained by the formation of this cyclic hemiacetal, and the cyclic structure has resemblance with furan, 5-membered ring. So that is why this is known as alpha D minus fructofuranose and beta D minus fructofuranose. ओके, चलिए ये जल्दी कंप्लीट कीजिए, इसके बाद डाइसैकेराइड्स बताऊंगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया और कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स का हमारा डिस्कशन ओवर हो चुका है। मोनोसैकेराइड्स में हमने दो कंपाउंड्स पढ़े हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इनकी प्रिपरेशन, इनका स्ट्रक्चर और इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स डाइसैकेराइड्स। किसकी तरफ? डाइसैकेराइड्स। तो कल आपको क्लासिफिकेशन में भी मैंने बताया है व्हाट आर डाइसैकेराइड्स। द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच प्रोड्यूसेस टू मोनोसैकेराइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलिसिस से दो मोनोसैकेराइड्स मिलता हो उसको ओलिगो कहते हैं। 2 से 10 मिलता हो उसको ओलिगो कहते हैं। स्पेसिफिक जब दो मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं तो उसको हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, इन डाइसैकेराइड्स में क्वेश्चन राइज होता है दैट हाउ द मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड। तो मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या याद रखोगे? टू मोनोसैकेराइड्स when joined with the help of glycosidic linkage, it forms disaccharide. Two monosaccharides when joined with the help of glycosidic linkage, it forms disaccharide. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अरे बाबा ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है? ये जो कुछ भी है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, व्हाट आर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है और इसको कैसे डिफाइन करोगे ये समझ लीजिए। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज is actually an oxide linkage. It is an oxide linkage formed between two monosaccharides by loss of water. ठीक है हर्षित, दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में वाटर मॉलिक्यूल लूज करके जब एक दूसरे से ऑक्साइड लिंकेज बनाते हो
उसी ऑक्साइड लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अभी मैं आपको शो भी करूंगा। इस डाइसैकेराइड में जो पहला कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं वो है सुक्रोज। ठीक है, आपको पता है सुक्रोज C12H22O11, this upon hydrolysis by enzyme or in presence of acid produces C6H12O6 and C6H12O6, जिसमें one is alpha D plus glucose and the other one is beta D minus fructose। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सुक्रोज किससे बना हुआ है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज से। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर आजू बाजू लिखूंगा, इससे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस दिखाऊंगा और ऑक्साइड लिंकेज का फॉर्मेशन दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, शौर्य आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है। दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज लिखो या ग्लूकोपाइरेनोज लिखो, अभी मैंने ग्लूकोज लिखा है। ठीक है, और इसके साथ इसके जस्ट बाजू में मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं मैं इस बार ना यहां से फर्स्ट कार्बन स्टार्ट करना चाह रहा हूं। आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट कार्बन फ्रॉम हियर, सो दिस इज OH, this is CH2OH, then OH, H, H, OH, CH2OH, H। अच्छा, दोनों पे मैं ना नंबर ऑफ कार्बन मेंशन कर देता हूं, पोजीशन मेंशन कर देता हूं। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। हियर ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड दिस इज सिक्स्थ वन। ठीक है, सो नाउ हाउ दिस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टेक्स प्लेस? द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टेक्स प्लेस by removal of water molecule from here like this, OH from here and H from here, OH and H together forms H2O, so H2O molecule will be lost and H2O molecule is lost and these two units get joined by एन ऑक्साइड लिंकेज। ये दोनों किससे ज्वाइन हो गए? ऑक्साइड लिंकेज। यही आपका बना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या फॉर्म हुआ ये? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इजी? चलिए, तो देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे देख के लगेगा ना आपको कि ये कितना बड़ा है, कैसे ये स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड होगा, लेकिन आपको देखो सोल एक में ही है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। वो याद हो गया तो उससे आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हो, और इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको मालूम है तो आप तुरंत वाटर मॉलिक्यूल का लॉस दिखा के ऑक्साइड लिंकेज बना सकते हो। ठीक है, इजी है ना? अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस हियर that the two monosaccharides which are formed here on hydrolysis of sucrose are different.
है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स। प्लीज अभी लिखो मत, पहले समझ लो, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स। दूसरी एक बहुत ही खास बात बता रहा हूं, आप किसी को मत बताना, ठीक है, पक्का? नहीं नहीं, मतलब जिनको भी बता रहा हूं वो किसी और को नहीं बताएंगे। वो खास बात ये है कि सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, सुक्रोज खुद में डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ, व्हाट इज द ऑप्टिकल रोटेशन नेचर ऑफ sucrose towards right? It is dextrorotatory. And upon hydrolysis it is giving alpha D glucose and beta D fructose, where alpha D glucose का जो रोटेशन होता है ये होता है +52.5 डिग्री, और बीटा डी फ्रक्टोज का जो रोटेशन होता है वो है -92.4 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर सुक्रोज को मैंने कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कर दिया तो इसका जो हाइड्रोलाइज्ड मिक्सचर है, इस मिक्सचर का नेट ऑप्टिकल रोटेशन किधर होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट, लीवो हो जाएगा। सुक्रोज कैसा था? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सुक्रोज वाज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म्स द मिक्सचर विच इज लिवोरोटेटरी। जो मिक्सचर है वो कैसा है? लिवोरोटेटरी है। इसी रीजन की वजह से सुक्रोज को इनवर्ट सुगर कहा जाता है। सुक्रोज इज नोन एज इनवर्ट सुगर। व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्ट सुगर? बिकॉज अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द हाइड्रोलाइज्ड मिक्सचर चेंजेस फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लिवो। दैट इज व्हाई सुक्रोज इज नोन एज इनवर्ट सुगर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट सुगर। मैं यहां लिख देता हूं sucrose is an invert sugar as the sign of rotation of sucrose changes from dextro to levo on hydrolysis। ठीक है सनी, किसी को बताना मत। सुक्रोज क्या है? इनवर्ट सुगर है। व्हाई इनवर्ट सुगर? बिकॉज द साइन ऑफ रोटेशन विल चेंज फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लिवो अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। और क्यों चेंज हो रहा है तो वो भी मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। हाइड्रोलिसिस के बाद जो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है उसकी ऑप्टिकल रोटेशन 52.5 डिग्री है, और जो फ्रक्टोज फॉर्म हो रहा है दैट इज हैविंग अ लिवो रोटेशन ऑफ -92.4 डिग्री। सो नेट रोटेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, नेट इट इज लिवो रोटेटरी। सो साइन ऑफ रोटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लस टू माइनस, फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लिवो। और इसी रीजन से हम सुक्रोज को क्या कहते हैं? सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? इनवर्ट सुगर। दूसरी चीज, एक मिनट प्लीज प्लीज स्टॉप स्टॉप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये भी बहुत खास है, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना एग्जामिनर के अलावा। वो खास चीज ये है, कल याद करो मैंने आपको रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ाया था, जिसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर में मैंने सुक्रोज का एग्जांपल लिया था, और मैंने बोला भी था कि टुमारो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस दैट व्हाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों है इसकी वजह आपको कल पता चल जाएगी, मतलब आज अभी पता चल जाएगी। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसा है? इट इज C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कैसा लिंकेज है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हर्षित, आई होप आपको यह समझ में आ रहा हो कि इसको C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों कहा गया।
C1 of this and C2 of this is involved in the formation of this oxide linkage. That is why it is C1 C2 glycosidic linkage. अब मुझे ये बताओ कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप कौन से कार्बन एटम पे होता है? पहला कार्बन। फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप कौन से कार्बन एटम पे होता है? दूसरा कार्बन। और वो दोनों के दोनों कार्बन यहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो गए। सो द एल्डिहाइड एंड द कीटोन ग्रुप हियर इन सुक्रोज मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व्ड इन द ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, दे आर नॉट फ्री। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोनों का दोनों कहां पे इन्वॉल्व हो गया? उसके कार्बन एटम्स जो हैं वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए और वो अब फ्री नहीं है। और फ्री नहीं है इसीलिए इट विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड द फेलिंग्स सॉल्यूशन, इसीलिए ये क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग। ओके, सो क्या लिखेंगे यहां पे? हम क्या याद रखेंगे? सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग sugar as the aldehyde group C1 of alpha D glucose and ketone C2 of beta D fructose are involved in glycosidic linkage and are not free to reduce tolerance reagent or Fehling's solution। ठीक है, आ रहा है समझ में? सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग इसलिए है क्योंकि इसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो चुके हैं और ये फ्री नहीं है, इसीलिए ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है आपका सुक्रोज का एवरीथिंग। नाउ can we move on to the next discussion of maltose? maltose भी डिस्कस कर लें? हाँ, maltose अपॉन हाइड्रोलिसिस। देखो ये सारी चीजें ना स्ट्रक्चर एज इट इज बुक में भी है, आप इसका पिक ले लीजिएगा, बाद में आराम से बैठ के लिख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा पहले समझने में ध्यान दे दो, या मैं टाइम दे दूंगा आपको नोट करने का। maltose Maltose on hydrolysis will be forming 2 units of alpha D glucose। इसके हाइड्रोलिसिस से आपको अल्फा डी ग्लूकोज के 2 यूनिट्स मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दैट द आइडेंटिकल, यहां जैसे मैंने लिखा था डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स आर फॉर्म, इसमें क्या होगा? आइडेंटिकल मोनोसैकेराइड्स आर फॉर्म, सेम मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको 2 अल्फा डी ग्लूकोज यहां पे लिख रहा हूं। समझ रहे हो शौर्य? दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। अल्फा डी ग्लूकोज है, राइट? एक और अल्फा डी ग्लूकोज इसके बाजू में बना दे रहा हूं। ये दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज बना रहा हूं, HOH
HOH, OHH, HOH, CH2, OH, H। इसमें भी नंबरिंग दे रहा हूं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे मैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन दिखा रहा हूं। OH एंड H रिमूव्ड, तो क्या होगा, यहां से H2O का रिमूवल होगा। हाँ, और क्या बन गया यहां पे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो फॉर्म हुआ, ये फर्स्ट और सेकंड फोर्थ कार्बन के बीच हो रहा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। अच्छा, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे होता है, तो इसका तो फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व हो गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, लेकिन इसका जो फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन अपनी पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप दे सकता है। जैसे ही हम इसमें टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, तो टॉलेंस रिएजेंट विल कॉज हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो ये खुल के आपको क्या दे देगा, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप एट फर्स्ट कार्बन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन इसका फ्री है ना, तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप विल बी फॉर्म एंड दैट्स व्हाई इट इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर। क्या होगा ये, रिड्यूसिंग शुगर। तो क्या बोलेंगे, इट इज reducing sugar as the free aldehyde group can be produced in second glucose unit and it reduces tolerance reagent and failing solution। कैसा सुगर है ये, इट इज रिड्यूसिंग सुगर। व्हाई, बिकॉज फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ग्लूकोज, मतलब यहाँ पे जो मैंने दो ग्लूकोज यूनिट बनाए हैं, उसमें सेकेंड वाले ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड इट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, चलो, तो माल्टोज हो गया। अब लैक्टोज बताना है। यहां पे बताऊं, समझ पाओगे आप, इस वाले रीजन में बताऊं लैक्टोज, हाँ, लैक्टोज तक बता देता हूं, ठीक है। हालांकि इसके बाद पॉलीसैकेराइड भी बहुत इजी है, हाफ एन आवर का काम है, बट लैक्टोज तक रखते हैं आज, ठीक है, चलेगा। लैक्टोज, लैक्टोज इज फॉर्म्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। किससे बना हुआ है ये, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो आप देखो, सबसे पहले मैं यहां पे बीटा डी गैलेक्टोज बना रहा हूं। बीटा मतलब ये OH यहां पे आएगा, ये हो गया बीटा डी
galactose, right? सनी इसको क्या बोलेंगे? रुक जाओ, पहले ड्रॉ कर लेने दो। दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। हाँ, चलो अब हमें क्या शो करना है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसे बनेगा, H and OH will be removed, right? तो H और OH जब रिमूव होगा, H और OH रिमूव होगा तो यहां पे क्या फॉर्म होगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन मैं दे देता हूं। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो कैसा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना? ये C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आप लिखोगे इसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट? अच्छा, नेचर बता सकते हो रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? ये रिड्यूसिंग होगा ना, क्योंकि यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी ऑब्टेन्ड, so दिस इज रिड्यूसिंग, है ना? इजी। ऐसे बुक में स्ट्रक्चर देख के आपको लग रहा होगा कि क्या है ये, कैसे होगा, राइट? इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, लेकिन आप देखो अभी मैं तरीका जो आपको बता रहा हूं, अगर आप फॉलो करो तो बहुत इजी है। देखो, हाउ गैलेक्टोज इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लूकोज इन टर्म्स ऑफ फोर्थ कार्बन। यहां पे भी OH अपवर्ड है। चलिए, तो दिस कंप्लीट्स योर डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड में हमें 3 डिस्कशन करने हैं। अगर आप साथ दो तो मैं पॉलीसैकेराइड्स भी कंप्लीट कर सकता हूं।